Hello, dear children. I hope all of you are hale and hearty. The topic for today's discussion is already on your screens and it reads Importing Standard Modules. Fine. So let me take you through the session. Here I go. What is a module, beta? What is a module? है ना, हम मॉड्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे? Let's see. A module is a file consisting of Python code. ये एक ऐसी फाइल है बेटा जो पाइथन कोड को कंटेन करती है. ठीक है. सेकेंड थिंग, what all a module can contain? A module can contain functions, classes and variables. It can contain functions, classes, variables. A combination of all these can be present inside a module. Okay. As it is a Python file, obviously its extension would be .py. So module has an extension py. फाइन. अब फिर से देखते हैं, इसको समराइज करते हैं. मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल विद द एक्सटेंशन py and it can contain functions, classes and variables. Fine. This is how we define a module. Let us see what are the various advantages of a module. Fine. Why do we need to write modules? See beta, modules break down large programs into small, manageable and organized parts that are easier to maintain. यहाँ रुकते हैं. सुनो, लंबी सी लाइन है ना, समझते हैं इसको. बहुत बड़ा प्रोग्राम है. ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं. डिक्शनरी पढ़ी हम सब ने. डिक्शनरी में आई आस्क यू टू मेक अ प्रोग्राम ऑन कॉन्टैक्ट बुक. आप एक कॉन्टैक्ट बुक इंप्लीमेंट कीजिए यूजिंग डिक्शनरी. You make a dictionary. Key value pairs आप लेते हो name और contact number. Name of the contact and the contact number. ठीक? Now when you see कि what all features your code should implement, when you think upon it, आप उस thinking process के according अपने code को लिखना शुरू करते हो. First thing, कुछ भी करने से पहले we have to add contacts to the dictionary. So we will do that. We will add contacts to the dictionary. ठीक है? Second thing, I have added the contacts. I want to see all of them. So I'll write the code to show all the contacts that have been added to the dictionary. Fine. पहले add का कोड लिखा, उसके आगे हमने show all add contacts का कोड लिखा, उसके आगे show all contacts का कोड लिखा. उसके बाद बेटा आप लिखते हो contact को, सारे contacts नहीं देखने. You want to just search and want to see the number of a particular contact, so you want to include the search function also in your code. तो आपने एक searching का भी कोड लिख दिया कि enter a name and if the name is found inside the dictionary you will be shown the contact number of that particular contact. तो आपने search का कोड भी ऐड कर दिया आगे. Fine. अब suppose a person's contact number changes, so your code should also have the provision to edit the number of a contact, so you write code for that as well. अब बात आती है, कॉन्टैक्ट है, फोन नंबर उस यूजर ने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो आपको क्या करना है? या आप उस कॉन्टैक्ट को अपने कॉन्टैक्ट बुक में नहीं सेव करना चाहते, गलती से लिख दिया था, तो आप क्या करोगे? उस कॉन्टैक्ट को अपने डिक्शनरी से रिमूव कर दोगे, तो डिलीशन का कोड भी लिखोगे. इमेजिन चिल्ड्रन, ये सारा कोड आप एक के पीछे जब आप लिखते चले जाओगे, योर कोड लेंथ विल बिकम, your code size will increase and your program size will grow large. तो अब जब large code size हो जाता है तो उसको maintain करना, उसको manage करना एक user के लिए cumbersome हो जाता है. Additionally, whenever you will run this code, what will happen? The whole code will run, क्योंकि sequentially लिखा है तो पूरा code one by one चलेगा. आप चाहते थे सिर्फ addition का चले, नहीं, उसके बाद display भी चलेगा, search भी चलेगा, edit भी चलेगा, delete भी चलेगा, because sequentially code आपने लिखा. ठीक है. तो क्या सोल्यूशन है हमारे पास एक सोल्यूशन है कि उस सिक्वेंशियल कोड को हम ब्रेक करें मॉड्यूलर कोड में. ठीक है. हम उसको मॉड्यूलर कोड में डिवाइड करें. हम क्या करें? उस बड़े से प्रोग्राम को स्मॉल, मैनेजेबल और ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स में डिवाइड करें. ठीक. उसके लिए हमने क्या लिखा? उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? We'll pick up the code that is responsible for adding the contact and place it inside a function for addition. Similarly, I'll make different functions for showing the contact, searching a contact, editing a contact and deleting a contact. Now my code is what? Earlier it was sequential. Now it has been divided into 5 parts. Each part is responsible for performing out a specific task
and my code now looks more organized, more manageable and it easy to maintain. फाइन, अब इस पूरे सारे फंक्शंस को हमने एक फाइल बनाई, py एक्सटेंशन सेव किया, ये बन गया हमारा मॉड्यूल. ठीक, अब इस मॉड्यूल को यूज कैसे करना है, जो मान लो आपको कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो सिर्फ आप एडिशन वाला पार्ट, उसी वाले फंक्शन को कॉल करोगे. यू नीड नॉट कॉल दी अदर फंक्शंस एंड सिर्फ वही कोड रन होगा जो फंक्शन कॉल होगा, उसके अलावा सारा कोड रन नहीं होगा. सो दिस इज हाउ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड व्हाइल राइटिंग डाउन लार्ज प्रोग्राम्स, they have been sorted out by writing down modular programs. फाइन. दूसरी चीज बेटा, आपके पास जो मॉड्यूल्स होते हैं, आपने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा, आपने मैथ मॉड्यूल पढ़ा, आपने स्ट्रिंग मॉड्यूल पढ़ा, OS मॉड्यूल है, these are all modules, you know. Is there any restriction on the number of times you can use them in your programs? A big no. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मॉड्यूल्स लिखे गए. पाइथन को हमने क्या कहा है? इट इज अ लैंग्वेज विद बैटरीज इंक्लूडेड. पाइथन का स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल सपोर्ट है. सो मेनी मॉड्यूल्स हैव बीन रिटन डाउन इन पाइथन सम. ठीक है, और उन मॉड्यूल्स को, ट्राइड टेस्टेड मॉड्यूल्स को आपको क्या करना होता है? सिंपली अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है एंड देन यू कैन मेक यूज ऑफ देयर फंक्शनैलिटी. फाइन. तो इस वजह से मॉड्यूल्स क्या इंप्लीमेंट करते हैं बेटा? मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट कोड रीयूजेबिलिटी. अगर आप मॉड्यूल्स लिखते हो तो वो आपका एक रीयूजेबल कोड हो जाता है दैट अदर प्रोग्रामर्स कैन यूज टू मेक देयर न्यू प्रोग्राम्स, सेविंग देयर टाइम एंड एफर्ट. आपके लिए मैथ मॉड्यूल लिखा हुआ है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट का कोड लिखने की जरूरत नहीं है अपने कोड, अपने नए प्रोग्राम में. आप उस मैथ मॉड्यूल को इंक्लूड करो अपने प्रोग्राम में, इंपोर्ट करो और स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज कर लो. आपका टाइम सेव हुआ ना. सो मॉड्यूल्स have been written, they have been written with this purpose in mind, only with this intention in mind, so that they help other developers to write their own code and help other developers save their time. So it is a module can be reused in any number of programs. So दो OP features modules की बहुत important जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है कि modules के थ्रू आपने modularity implement करी by breaking down your large program into small manageable parts, और modules के through आपने code reusability implement करी by allowing the programmer to reuse, rerun code written inside already available modules as many number of times in as many number of programs. फाइन. अब देखते हैं बेटा मॉड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं. वी हैव बिल्ट इन मॉड्यूल्स. बिल्ट इन मॉड्यूल्स आर द रेडी टू यूज मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड बाय पाइथन, जो पाइथन के साथ अवेलेबल होते हैं. रेडी मेड मॉड्यूल्स हैं दैट यू कैन यूज इन योर प्रोग्राम. फाइन. देखते हैं, अगर आप देखना चाहो कि आपके पास कितने बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं बेटा, तो आप पाइथन प्रॉम्प्ट पे लिखो हेल्प और ब्रैकेट्स में लिख दो मॉड्यूल स्ट्रिंग फॉर्म में. Python will take some time and it will display on your screen the list of all available modules on your Python installation, and ये जो names हैं ये alphabetically arranged होंगे. So this is a very helpful function. You just try it out and see how quickly Python will display the list of all available modules for you on your screens. फाइन. तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स आप ऐसे देख सकते हो. दूसरी चीज, दूसरे तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स. यूजर डिफाइंड नाम से ही पता चल रहा है, जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लिखता है. आई विल बी holding a session for user defined modules also in my subsequent video sessions. So for the time being we will focus on built-in modules and how we can use them in our programs. Fine, let's proceed. See, how do I import standard modules in my program? इसके दो मेथड्स हैं बेटा. वन इज यूजिंग द इम्पोर्ट कीवर्ड एंड द अदर इज यूजिंग द फ्रॉम कीवर्ड. तो फर्स्ट मेथड हम लेंगे जिसमें हम एम्फेसाइज करेंगे हाउ टू इम्पोर्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स इन आवर प्रोग्राम यूजिंग द इम्पोर्ट कीवर्ड. कैसे लिखते हैं इसको? import keyword followed by the name of the module that you want to include in your program. तो आप कैसे लिखोगे बेटा? import module name, ये पूरा क्या लिखा मैंने यहाँ पर? यूजिंग द इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम स्टेटमेंट. आप इस स्टेटमेंट को लिखते हो जैसे ही, तो वो पर्टिकुलर मॉड्यूल बाय नेम आपके करंट प्रोग्राम में आ जाता है. सो दिस ब्रिंग्स द मॉड्यूल नेम इनटू योर करंट प्रोग्राम. ये जो आपने यहाँ नेम लिखा वो आपके करंट प्रोग्राम में बेटा अवेलेबल हो जाएगा. डायरेक्ट एक्सेस आप इस नेम को अपने कोड में कर सकते हो. ठीक है. एक चीज और आती है बेटा, नेम आता है मॉड्यूल. मॉड्यूल के अंदर क्या होते हैं? फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स. आपने पढ़े बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं मॉड्यूल के. इस मेथड में
आपको मॉड्यूल के अंदर के कंटेंट्स का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा. इट विल नॉट गिव यू डायरेक्ट एक्सेस टू एनी ऑफ द नेम्स इनसाइड द मॉड्यूल. इट विल ओनली गिव यू डायरेक्ट एक्सेस टू द मॉड्यूल नेम इटसेल्फ. फाइन. तो अब आप अंदर के कंटेंट्स को कैसे एक्सेस करोगे? टू एक्सेस द नेम्स इनसाइड द मॉड्यूल यू विल प्रीफिक्स दैट पर्टिकुलर नेम विद द मॉड्यूल नेम एंड डॉट ऑपरेटर. सो सपोज आपको कोई भी मॉड्यूल के अंदर का फंक्शन यूज करना है, तो आपको, अगर आपने इंपोर्ट किया उस मॉड्यूल को यूजिंग द इंपोर्ट मॉड्यूल नेम स्टेटमेंट, तो आपको उस फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा. आपको उससे प्रीफिक्स करना पड़ेगा विद द मॉड्यूल नेम एंड द डॉट ऑपरेटर. लेट्स सी हाउ. देखो यहाँ पे देखो बेटा, आपने इंपोर्ट मैथ किया. जैसे आप इंपोर्ट मैथ करते हो, ठीक है, इंपोर्ट मैथ करते ही मैथ नाम से ये मॉड्यूल आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाता है. नाउ व्हाटएवर आर द कंटेंट्स ऑफ द मैथ मॉड्यूल, से यहाँ पर क्या हुआ, पाई इज प्रेजेंट इनसाइड द मैथ मॉड्यूल. इट डिस्प्ले यू द वैल्यू ऑफ पाई. फाइन. जब आप पाई लिखते हो तो एरर आता है. पाई लिखने पर एरर क्यों आता है? क्योंकि आपको मॉड्यूल नेम तो डायरेक्टली अवेलेबल हुआ है, बट उसके अंदर के नेम्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हुए हैं. तो कैसे करोगे उसको? आप पाई को प्रीफिक्स करोगे मॉड्यूल नेम और डॉट ऑपरेटर से. तो अब आप लिखो मैथ डॉट पाई, तो यू गेट द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन्स. सिमिलरली स्क्वायर रूट फंक्शन को आपको यूज करना है. स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए आपने ब्रैकेट में 2 लिखा. पाइथन अगेन थ्रोज नेम एरर. इट डजंट रिकॉग्नाइज व्हाट इज दिस SQRT. इट ओनली रिकॉग्नाइज द मॉड्यूल नेम. तो अगर आपको स्क्वायर रूट भी यूज करना है, तो आप उसे कैसे यूज करोगे बेटा? You will use it by prefixing it with the module name and dot operator. So जब भी आप import module name statement लेते हो, you have to be very careful कि मॉड्यूल का नाम आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाता है, डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है. मॉड्यूल के अंदर के कंटेंट्स आपके लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते. They have to be, in order to use them, you have to prefix them with the module name and dot operator. Okay, so I hope the first method is clear to all of you. Let's proceed to the second method. Second method जो है बेटा, उसके दो वो हैं, this thing, 2 ways in which it can be used. अगर आप मॉड्यूल के अंदर की सारी चीजें अपने प्रोग्राम में अवेलेबल कराना चाहते हो, तो आप यूज करोगे फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक स्टेटमेंट. मॉड्यूल का नाम लिखोगे, फ्रॉम कीवर्ड यूज करोगे, उसके आगे मॉड्यूल का नाम, फिर इंपोर्ट कीवर्ड लिखोगे, उसके आगे यू विल राइट एस्ट्रिक. ये क्या करेगा? फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इट विल इंपोर्ट एवरी नेम इनटू योर प्रोग्राम. ठीक है. अब देखो इसके आगे, अब ये क्या लेके आएगा आपके प्रोग्राम में? पहले मेथड में वो मॉड्यूल के नाम को लाता था, अब वो मॉड्यूल के नाम को आपके प्रोग्राम में नहीं लेकर आएगा. वो फिर क्या लेकर आएगा बेटा? वो आपके प्रोग्राम में क्या लेकर आएगा? वो इसके अंदर जितने भी नेम्स हैं, जो यहाँ एस्ट्रिक है ना, एस्ट्रिक से क्या मिले आपको? सारे नेम्स ना, वो नेम्स आपके प्रोग्राम में अवेलेबल करा देगा. मतलब मॉड्यूल के अंदर के कंटेंट्स, उसके अंदर के जितने भी नेम्स हैं, फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, दे विल ऑल बिकम अवेलेबल टू योर करंट प्रोग्राम. फाइन. नेम अवेलेबल नहीं होगा, नेम मॉड्यूल के अंदर के कंटेंट्स जो हैं वो नेम्स अवेलेबल होंगे. तो अब क्या हुआ? जब वो डायरेक्टली अवेलेबल हैं, तो क्या होगा? अब आप उन नेम्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट द प्रीफिक्स. वो प्रीफिक्स आप लगाते थे ना मॉड्यूल नेम और डॉट, वो अब लगाने की जरूरत नहीं है. सी इट फॉर योरसेल्फ. देखो, आपने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक. मैथ मॉड्यूल लिखा, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक. अब क्या हुआ? ये नेम हाइड हो गया, ये आपके पास नहीं आया, अंदर के सारे कंटेंट्स आपके पास आ गए. पाई लेना ना, पहले आप क्या लिख रहे थे? मैथ डॉट पाई. मैथ डॉट पाई पे एरर आया, क्योंकि मैथ आया ही नहीं आपके पास, मॉड्यूल बाई नेम नहीं आया, मॉड्यूल के अंदर के कंटेंट्स बाई नेम आ गए. तो अगर आपको पाई लेना, डायरेक्टली लिखो पाई, कोई प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं, प्रीफिक्स चलेगा भी नहीं. ठीक है. पाई लिखो, पाई आपके प्रोग्राम में अवेलेबल है, उसका आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा. Similarly, when you write math.sqrt2, Python throws name error because math module is not available by name to our program, only its contents are available. So square root also, this function can also be directly called. And इस मेथड से आपके पास दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है बेटा? एक तो मॉड्यूल के अंदर के सारे कंटेंट्स बाई नेम आ जाएंगे, प्लस मॉड्यूल नेम आपका अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको जो मॉड्यूल नेम डॉट से प्रीफिक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अंदर के कंटेंट्स आर डायरेक्टली अवेलेबल, सो यू एक्सेस देम डायरेक्टली यूजिंग देयर नेम. ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट वे ऑफ यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट. फ्रॉम मॉड्यूल नेम क्या इंपोर्ट कर रहे हो? एस्ट्रिक, मतलब सब कुछ. एस्ट्रिक का मतलब एवरीथिंग इनसाइड दैट मॉड्यूल. ठीक. नाउ सपोज
आई डोंट वॉन्ट कि मैं मॉड्यूल से सब कुछ लाऊं, मुझे सिर्फ 2-4 चीजें चाहिए, ओनली 2-3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. आई वॉन्ट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ नेम्स that in my program that I want to import from this module. तो अब हम इस बारे में बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड के दूसरे फॉर्म पर. दूसरा फॉर्म क्या कहता है बेटा, देखो, यूजिंग फ्रॉम मॉड्यूल नेम. अब आप इंपोर्ट के आगे एस्ट्रिक नहीं लिखोगे, आपको एक नाम चाहिए एक नाम लिखो, 2 नाम चाहिए तो कॉमा लगा लगा के आपको जितने भी उस मॉड्यूल के अंदर से फंक्शंस चाहिए या वेरिएबल्स चाहिए, प्रोवाइड अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ओवर देयर. ठीक है, तो ये अब एस्ट्रिक नहीं लिखने की वजह से क्या होगा, सारे कंटेंट्स नहीं आएंगे, only the specific things from that module, specific names from that module will be made available to your program directly. Fine. देखो, अब this too will not bring, ये मॉड्यूल नेम अभी भी हमारे करंट प्रोग्राम में नहीं आएगा. ठीक है, इस मॉड्यूल के सारे कंटेंट्स भी हमारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे. तो हमारे प्रोग्राम में आएगा क्या, देखो, ये जो आपने यहाँ नेम्स दिए हैं, ठीक है, इट इज यूज्ड टू इंपोर्ट स्पेसिफिक नेम्स फ्रॉम अ मॉड्यूल विदाउट इंपोर्टिंग द मॉड्यूल एज होल इनटू अ करंट प्रोग्राम. तो एस्ट्रिक लिखने से सब कुछ आता था, अब सिर्फ वो स्पेसिफिक नेम्स दैट यू हैव प्रोवाइडेड हियर आफ्टर द इंपोर्ट कीवर्ड, दे विल बी ब्रॉट इनटू योर प्रोग्राम. फाइन. अब एक्सेस कैसे करेंगे बेटा, ऑब्वियसली इसे भी हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे. सारे नाम एक्सेसिबल नहीं होंगे, ये बात बहुत बी केयरफुल. सिर्फ these specific names will be accessible to you inside the program without any prefix. See for yourself. देखो, आपने लिखा from math import pi, sqrt. अब from the math module only 2 specific names have been imported into a program directly. One is pi, one is sqrt. math.py पे एरर क्यों आया बेटा, मैथ मॉड्यूल बाई नेम हमारे पास नहीं आया. पाई पर एरर नहीं आएगा, पाई आपने लिखा डायरेक्ट एक्सेसिबल है, उसका आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा. सिमिलरली math.sqrt पर भी एरर आएगा. रीजन, मॉड्यूल नेम इंपोर्ट नेम है, मॉड्यूल के अंदर से sqrt इंपोर्ट हुआ है, सो sqrt लिखोगे आउटपुट आ जाएगा. अब मैथ मॉड्यूल के पास एक और फंक्शन भी होता है, फैक्टोरियल. फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालना है, मैंने फैक्टोरियल 4 लिखा, एरर क्यों आया, रीजन, क्योंकि आपने इंपोर्ट करते टाइम यहाँ पर कॉमा लगा के फैक्टोरियल नहीं लिखा था. You only asked Python to give you 2 things from this module, pi and sqrt. वो आपको अवेलेबल होगी, फैक्टोरियल पर प्रोग्राम ने एरर दे दिया क्योंकि वो आपने इंपोर्ट ही नहीं किया है. ठीक है, सो आई होप दिस सेकंड मेथड यूजिंग फ्रॉम कीवर्ड, यू कैन राइट फ्रॉम मैथ, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, import asterisk, that will bring everything into your program from that module. Fine. And if you write from module name, import set of names, it will bring only those specific names into your program. ठीक है, so I hope both these methods of importing a standard module, a built-in module into your program are clear to you. Let's proceed further. कुछ और देखते हैं, इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग सा देखते हैं. क्या है देखते हैं बेटा. मॉड्यूल है, रैंडम है, मुझे मैथ है, मुझे ना बार बार मैथ नहीं लिखना इंपोर्ट करते. मैंने इंपोर्ट मैथ लिखा तो मुझे मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट पाव, मैथ डॉट पाई, ऐसे बार बार मैथ नहीं लिखना. मैं उसको एक छोटा सा एलियास नेम दे देती हूँ अपने इस प्रोग्राम के लिए. ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, देखो, यूजिंग द इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज कीवर्ड है एज ऑल्टरनेट नेम स्टेटमेंट. अब क्या होगा, रीनेम नहीं हुआ, ये वैसे नहीं कि मैथ मॉड्यूल खत्म हो गया, मैथ मॉड्यूल मेरे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए रीनेम हो गया और ये मैंने उसको एक ऑल्टरनेट नेम दिया है जस्ट टू टाइप. अगर मेरा मॉड्यूल नेम बहुत बड़ा है तो मैं बार बार अवॉइड करना चाहती हूँ, आई वांट टू सेव माय टाइपिंग टाइम, आई कैन गिव इट अ स्मॉल सिंगल लेटर 2 लेटर ऑल्टरनेट नेम जो मैं कन्वीनियंटली अपने प्रोग्राम में आगे यूज कर सकूं. ठीक है, सो आप कैसे लिखते हो उसको देखो, आगे देखते हैं. We can use the alternate name for the module we are importing using the as keyword. कैसे लिखोगे बेटा, import module name जो आपका ओरिजिनल मॉड्यूल नेम है, as keyword लिखा, उसके आगे how are you aliasing it, what alias name और alternate name you are providing it, वो नेम आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे. ठीक है, ठीक है, देखते हैं अब इसमें. अब क्या होगा, देखो, ओरिजिनल मॉड्यूल नेम अब हमारे प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज नहीं होगा, यानी ये जो नेम था रिकॉग्नाइज नहीं होगा हमारे प्रोग्राम को. अब ये सिर्फ ये नेम रिकॉग्नाइजेबल होगा. ठीक है, तो देखते हैं. द एक्सेस द नेम्स इनसाइड द मॉड्यूल. इंपोर्ट क्या करता है बेटा, मॉड्यूल नेम को प्रोवाइड करता है ना आपके प्रोग्राम में. ठीक है, अंदर के कंटेंट्स को तो नहीं देता. अब अंदर के कंटेंट्स को एक्सेस करना है तो मॉड्यूल नेम से एक्सेस करना पड़ता है. तो अब आप ओरिजिनल मॉड्यूल नेम से एक्सेस नहीं कर पाओगे उसको. फाइन, आप अंदर के नेम्स को ऑल्टरनेट नेम से एक्सेस कर पाओगे और डॉट ऑपरेटर के साथ. ठीक है, देखो कैसे करते हैं.
क्लियर होगा अभी। आपने ऊपर क्या लिखा बेटा, इंपोर्ट मैथ एज एम, मैंने मैथ को एक एलियास नेम दे दिया एम। फाइन, अब क्या हुआ, ये मैथ नाम रिकग्नाइज नहीं होगा, अब सिर्फ ये रिकग्नाइज होगा। ठीक, और आपको ये भी पता है जब आप इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हो तो यू ओनली हैव एक्सेस टू द मॉड्यूल नेम, यू डोंट हैव एक्सेस टू द कंटेंट्स इनसाइड द मॉड्यूल। सो पाई लिखने पर एरर आई। ठीक, मैथ डॉट पाई पे क्यों एरर आई, क्योंकि मैथ को आपने रीनेम कर दिया एम, इसलिए वो रिकग्नाइज नहीं हो रहा। अब पाई को देखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, you will have to use the alternate name that you have given to math, that is m, and then you'll write dot, and then you'll write the name that you want to access from module math using its alias name. ठीक है, sqrt2 पर एरर आई बेटा, रीजन sqrt डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, वो अपने मॉड्यूल नेम के साथ एक्सेसिबल होगा। ओरिजिनल मॉड्यूल नेम पर एरर क्यों आई, क्योंकि हमने ओरिजिनल मॉड्यूल नेम को रीनेम कर दिया है इस स्टेटमेंट में m, so आपको sqrt एक्सेस होगा with the alternate name instead of the original module name. Fine, so I hope this is clear to you. Let's proceed. हम import के साथ as को तो यूज करके देख रहे हैं, let's see how we can use as keyword with the from this thing keyword. ठीक है, तो renaming the specific names of an imported module. ठीक है, मॉड्यूल को तो हमने रीनेम करके देख लिया पिछले स्लाइड में, अब देखते हैं मॉड्यूल के अंदर जो नेम्स हैं उनको हम कैसे रीनेम करते हैं। बेटा देखो, व्हाट विल यू विल यूज द फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट नेम एज ऑल्टरनेट नेम। अब एज कहाँ लगा है, मॉड्यूल का नाम तो आपको पता ही है, उसमें से आपको जो नाम इंपोर्ट करना है, फिर एज लगा के बताओ उस नाम को क्या नाम देना है, किस नाम से यूज करना है। ये होगा, मॉड्यूल के अंदर के स्पेसिफिक नेम्स को भी हम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, देखो, वी कैन यूज एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर द स्पेसिफिक नेम बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अ मॉड्यूल यूजिंग द एज कीवर्ड। क्लियर, देखो अब क्या होगा, मॉड्यूल नेम क्या क्या हाइड होगा, देखो क्या क्या हाइड होगा बेटा, ये तो हाइड हुआ ही है, ये नाम भी हाइड हो जाएगा, सिर्फ विजिबल क्या होगा, ये नाम। ठीक है, तो आप मॉड्यूल नेम, ओरिजिनल, स्पेसिफिक नेम दोनों ही रिकग्नाइज नहीं होंगे करंट प्रोग्राम में, ओनली द ऑल्टरनेट नेम विल बी रिकग्नाइज्ड इनसाइड अ प्रोग्राम, और उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी प्रीफिक्स के। ठीक है, देखो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी एज एस, किसको रीनेम किया बताओ, मैथ को किया, एसक्यूआरटी को किया, एसक्यूआरटी को हमने रीनेम किया और क्या नाम दिया, एस। ठीक, अब क्या क्या हाइड हो गया बेटा, मैथ हाइड हो गया, मैथ के साथ एसक्यूआरटी यूज करोगे एरर, एसक्यूआरटी भी हाइड हो गया डायरेक्टली, क्योंकि जब फ्रॉम वाला लेते हो तो मॉड्यूल नेम तो वैसे भी नहीं आता, जो आपने आगे दिया है वो स्पेसिफिक नेम आता है, उस स्पेसिफिक नेम को भी आपने रीनेम कर दिया, तो अब हमारे प्रोग्राम में सिर्फ क्या अवेलेबल होगा, क्या रिकग्नाइज होगा, एस। ओके, ठीक है, तो अब जब आपने sqrt2 लिखा वो भी नहीं अवेलेबल होगा क्योंकि उसे हमने रीनेम कर दिया एस, तो अब हमारे प्रोग्राम को क्या मिलेगा बेटा, एस मिलेगा। sqrt को आपने एलियास नेम दे दिया एस, और आप उसके थ्रू sqrt फंक्शन की फंक्शनैलिटी को अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। फाइन, तो ये थी हमारी कि हम रीनेमिंग भी कर सकते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ कैसे करेंगे और फ्रॉम स्टेटमेंट के साथ कैसे करेंगे। ठीक, अब एक छोटी सी एंड में अच्छी सी चीज बताती हूँ आपको, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप जानना चाहते हो मेरे मॉड्यूल में क्या क्या है, how many list of name, what is the list of names actually in my imported module। उसके लिए what will I do बेटा, I will use the dir function, pass the module name as parameter to it, and that will return me a sorted list of strings। लिस्ट आएगी, उसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगी जो सॉर्टेड होंगी, और वो स्ट्रिंग्स क्या होंगी, उस मॉड्यूल के अंदर जितनी भी चीजें डिफाइंड हैं उनके नाम। ठीक है, वुड यू लाइक टू सी इट, सी आपने लिखा इंपोर्ट मैथ dir मैथ, डायरेक्टरी ऑफ मैथ दिया, इसने एक सॉर्टेड लिस्ट आपको रिटर्न करी, लिस्ट है देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आउटपुट आया, उसके अंदर सब स्ट्रिंग्स हैं जो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं। हमने अभी देखो यूज किया था पाई, ढूंढे जरा पाई इसमें कहाँ, ये रहा पाई। ठीक है, हमने फैक्टोरियल भी ट्राई किया था, वो ये रहा, हमने एसक्यूआरटी ट्राई किया, ये रहा। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आप देख पा रहे हो, तो एक सॉर्टेड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आती है विच इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ ऑल द नेम्स इनसाइड दैट मॉड्यूल। आप किसी भी मॉड्यूल की लिस्टिंग देखने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ द dir built-in फंक्शन। फाइन, अब देखो तुम्हें जानना चाहते हो कि वो मॉड्यूल का पर्टिकुलर फंक्शन करता क्या है, तो पाइथन जब आप फंक्शंस लिखते हैं ना बेटा, तो आप भी आगे सीखोगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस में उनकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है, जिससे हम फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग कहते हैं, है ना। वो डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी जाती है, वो डॉक्यूमेंटेशन क्या बताती है
कि वो फंक्शन का ब्रीफ पर्पस, कभी कभी ब्रीफ होता है, कभी कभी बहुत लार्ज भी होता है। तो आप डॉक्यूमेंट के मॉड्यूल जो इंपोर्ट किया है उसके अंदर की किसी भी फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन देखना चाहो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहो, तो यू हैव द हेल्प बिल्ट इन फंक्शन दैट डज द नीडफुल फॉर यू। सी फॉर योरसेल्फ। अभी हमने इंपोर्ट मैथ किया था, उसकी डायरेक्टरी भी ले ली, ठीक है। SQRT फंक्शन है, मैंने लिखा यहाँ पर हेल्प math.sqrt, ठीक है ना। मैथ डॉट से क्यों प्रिसीड किया, क्योंकि इंपोर्ट यूज हुआ है ना, तो अंदर के कंटेंट्स मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, मॉड्यूल नेम से प्रीफिक्स करने पड़ेंगे। तो पाइथन ने उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न करी, हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन SQRT इन मॉड्यूल मैथ, SQRTX will return the square root of x. So anytime you want to know what my particular function does, na, you can use the help function to get its documentation. Fine, interesting, isn't it? So this is all for today's session, beta. Time for you to try all the things that I have explained in this session. Do try them out. Come back to me with your valuable feedback. Until we meet again, happy learning and God bless you.